Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your maths teacher Ms. Rehana Naqvi, SS Mathematics, Regional Public School and College Sahiwal. I welcome to all of you in DPS online classes. Dear students, we know that chapter number 1 quadratic equations is going on, and today we will learn about quadratic formula, derivation of quadratic formula and exercise 1.2. But before starting today's lecture, recall some important points. That is, standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. Students, we already learned two methods to solve a quadratic equation. First one is by factorization method and second one is by completing square method. Today we will discuss its third method to solve a quadratic equations, which is named as quadratic formula. Here quadratic formula gives the solution of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 as x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a, where a is not equal to 0. Now the derivation of quadratic formula by a completing square method. Firstly, write the standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. The first step for completing square method is that the coefficient of x square must be 1. अब यहाँ पे x square का coefficient a दिया हुआ है, यहाँ पे 1 बनाने के लिए हर टर्म को a से डिवाइड करना होगा. So dividing each term by a, we get the result x square plus b over ax plus c over a is equal to 0. Second step for completing square method is that shift a constant term c over a to a right side. अब यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म है c ओवर a, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे. x square plus b over ax is equal to minus c over a. Now the third step for completing square method is that कि आपने x के कोफिशिएंट b over a को मल्टीप्लाई करवाना है 1 over 2 के साथ और इसके होल स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे. Here 1 over 2 multiply coefficient of x is b over a is equal to b over 2a. Now add b over 2a whole square on both sides. दोनों साइड्स पे b over 2a whole square को ऐड करने के बाद now look at this. This is the expanded form of a formula x plus b over 2a whole square. इस पे आप a plus b whole square वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, देन आपके पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी. आपने फॉर्मूला में a की जगह पे x पुट करेंगे और b की जगह पे b ओवर 2a पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट टेकिंग एलसीएम ऑफ राइट साइड a 4a स्क्वायर में से एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर. एलसीएम लेना आप पहले से ही जानते हैं. सो वी हैव माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर. स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट द रिजल्ट. स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा. यहाँ पे अरेंज किया है माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस 4ac की फॉर्म में और स्क्वायर रूट को सेपरेटली अप्लाई किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. नाउ x plus b over 2a is equal to plus minus b square minus 4ac square root over 2a. अब यहाँ से b over 2a को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे. प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा. अगेन यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2a. सो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. And here the condition is same that a is not equal to 0. So thus this is known as a quadratic formula. इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें.
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. Let's see some main points to apply formula in questions. In standard form of quadratic equation, here x is a variable and the coefficient of x square is called a, coefficient of x is called b, and here c is called a constant term. For better understanding, look at this example. 5x square plus 2x plus 3 is equal to 0. अब इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, x का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म इसमें आपके पास 3 है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करें और a एंड b और c की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे. Here a is equal to 5, b is equal to 2 and c is equal to 3. Second example, x square minus 3x minus 4 is equal to 0 is also an quadratic equation. So in it, the coefficient of x square is 1 and the coefficient of x is minus 3 and the constant term is minus 4. So a is equal to 1, b is equal to minus 3, c is equal to minus 4. इसमें आपने नेगेटिव साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना. इसके बाद इन सारी वैल्यूज़ को a, b एंड c की वैल्यूज़ को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये बात याद रख लें, इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज किए हुए दिए होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको खुद से अरेंज करने पड़ेंगे या इतना सिंप्लीफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं. कन्वर्ट करने के बाद ए, बी और सी की वैल्यू को आपने आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करना है और आगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाना है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x. अब यहाँ पे ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, पहले आप इसको अरेंज करेंगे. अरेंज इस तरह करेंगे कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म एंड इक्वल टू 0. यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट किया है. वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 7 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c इज इक्वल टू माइनस 2 है. अब a, b और c की वैल्यूज को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर दें. b की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 7, माइनस जो है वो फॉर्मूले का है 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह पे 7 स्क्वायर फॉर्मूले का माइनस 4 भी फॉर्मूले का. ब्रैकेट में a की जगह पे 1 पुट करेंगे, c की जगह पे माइनस 2 ओवर 2, a की जगह पे 1 पुट करेंगे. नाउ सिंप्लीफाई इट. x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस 8 ओवर 2. x is equal to minus 7 plus minus square root 57 over 2. So our solution set is minus 7 plus minus square root 57 over 2. Question number 3. Firstly, arrange the question number 3 according to the standard form of quadratic equation. फर्स्ट स्टेप में इसको अरेंज किया है. स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है स्क्वायर रूट 3, एक्स का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है माइनस 4 स्क्वायर रूट 3. कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ और आइडेंटिफाई करें ए, बी एंड सी. अब ए, बी एंड सी की वैल्यूज़ को इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है. माइनस फार्मूले का b की जगह पे 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे पुट करेंगे स्क्वायर रूट 3
एंड सी की जगह पे पुट करेंगे -4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ए की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट 3 एंड नाउ सिंप्लीफाई इट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे। नाउ सिंप्लीफाई इट, वी हैव -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 16 इंटू 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। नाउ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह प्लस एंड माइनस वाले दो साइंस कंबाइन आएंगे तो आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको 2 पार्ट्स में चेंज करना है। एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ मेंशन करेंगे और दूसरी दफ़ा माइनस के साइन के साथ इसको लिखेंगे। एंड नाउ सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई करने के बाद x इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 एंड x इज इक्वल टू -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। -4 ओवर स्क्वायर रूट 3 को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो सेकेंड सोल्यूशन आपके पास यही रहेगा। नाउ मूव टूवर्ड द फर्स्ट सोल्यूशन। फर्स्ट x इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है। इसको आपने 9th में 2 मेथड्स रीड किए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड इज दैट स्क्वायर रूट 3 को 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अगेन आंसर आएगा 3। इट्स मीन आप 3 की जगह पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। और दूसरा मेथड है रैशनलाइज कर सकते हैं 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये आपके पास क्वेश्चन था, इसको मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले मेथड को यूज़ किया है। 3 की जगह पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 कट हो जाएंगे। सो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। सो वी हैव अ सोल्यूशन सेट स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5, इसमें आपने एलसीएम लेना है x माइनस 6 एंड x माइनस 5। एलसीएम लेने का मेथड आप पहले ही जानते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 के साथ और 4 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 के साथ। नाउ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। सिमिलरली 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस की वजह से साइन चेंज करना है। x माइनस 6 और x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना भी आपको पहले आता है। जस्ट एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें इस मेथड को। 2 मेथड से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 3x माइनस 4x करेंगे माइनस x माइनस 15 प्लस 24 यू विल गेट प्लस 9 एंड सिमिलरली x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स प्लस 9 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी। अब इसको कंपेयर करें और आइडेंटिफाई करें a, b एंड c की वैल्यूज़ को और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। में सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आपके पास एलसीएम आएगा x माइनस 1 एंड 2x। x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x के साथ और 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ और होल फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 3 2 6 प्लस 1 7/3।
नाउ मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट्स। 2x को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 माइनस एक्स और x माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पहले से ही आता है और रिव्यू के लिए साइड पे किया हुआ है। सिंप्लीफाई करने के बाद इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, साइन चेंज करें और अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाना है। नाउ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के साथ और 7 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x के साथ। इतना सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। a की वैल्यू आएगी -5, b 11, c इज इक्वल टू 12। इन सब वैल्यूज को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करें और आगे इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9, a over x minus b plus b over x minus a is equal to 2. Here LCM is x minus b and x minus a. So LCM लेंगे, a को मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस a के साथ और b मल्टीप्लाई होगा x माइनस b के साथ। यू ऑल आर फेमिलियर विद द मेथड फॉर टेकिंग एलसीएम। नाउ ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करवाना है। a को x के साथ माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली x माइनस b और x माइनस a को मल्टीप्लाई करवाया। आप x माइनस बी एक्स प्लस ए बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे साइन चेंज होगा। साइन चेंज आफ्टर इट वी अरेंज ऑल द वैल्यूज। सबसे पहले माइनस 2x स्क्वायर प्लस x वाली सारी वैल्यूज को अरेंज करेंगे 2ax प्लस ax प्लस 2bx प्लस bx। देन कांस्टेंट टर्म्स माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई इट। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 3bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab। x स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, 3ax प्लस 3bx में से x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 3a प्लस 3b। सिमिलरली माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab में से माइनस कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -2, x का कोफिशिएंट है 3a प्लस 3b एंड द कांस्टेंट टर्म इज माइनस ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट। सो हियर a, b एंड c की वैल्यूज को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू पुट की प्लस माइनस b फॉर्मूले का स्क्वायर -4, a की जगह पे -2, c की जगह पे उसकी सारी वैल्यू पुट की। सिमिलरली 2 a की जगह पे -2 पुट किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट इंटू 3a प्लस 3b एज इट इज रहेगा, प्लस अप्लाई करेंगे a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। a की जगह पे 3a पुट करेंगे और b की जगह पे 3b पुट करते जाएंगे। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 3b प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 8 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करें। -3a प्लस 3b एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर। सिमिलरली अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर को, 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर एंड सिमिलरली 18ab में से 16ab को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस इंटू 3a प्लस 3b प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
ये एक्सपेंडेड फॉर्म है a प्लस बी होल स्क्वायर की। इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे। आफ्टर दैट माइनस इंटू 3a प्लस 3b ब्रैकेट प्लस माइनस a प्लस b ओवर माइनस 4। अब जैसा कि पहले भी बताया है कि प्लस माइनस का साइन जब आएगा तो आपने इसको 2 पार्ट्स में चेंज करना है। एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। आफ्टर दैट सॉल्व इट। माइनस 3a माइनस 3b प्लस a प्लस b, यहाँ पे माइनस की वजह से साइन चेंज होगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस a, सिमिलरली माइनस 3b प्लस, after subtraction we have minus 2a minus 2b over minus 4. Here minus 3a minus a and minus 3b minus b. So minus 4a minus 4b over minus 4. यहाँ से minus 2 कॉमन लें और यहाँ से minus 4 कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में साइन भी चेंज होगा। उसके बाद कटिंग कर दें और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें जो सोल्यूशन सेट मिल रहा है वो है x इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 10। हियर फर्स्टली अरेंज इट। माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2l प्लस m ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट l प्लस m ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस l है, x का कोफिशिएंट 2l प्लस m है एंड द कांस्टेंट टर्म इज माइनस इंटू l प्लस m। सो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a इज इक्वल टू माइनस l, b इज इक्वल टू 2l प्लस m, c इज इक्वल टू माइनस इंटू l प्लस m। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद 2l प्लस m होल स्क्वायर पे a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला में a की जगह पे 2l पुट करेंगे और b की जगह पे m पुट करते जाना है। सो 2l होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l m प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4l इंटू l प्लस m। नाउ माइनस इंटू 2l प्लस m एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4l को l प्लस m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे। नाउ सिंप्लीफाई इट। 4l माइनस 4l स्क्वायर 4lm एंड 4lm आपस में कट हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर ओवर 2l। अब यहाँ पे m स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस इंटू 2l प्लस m ओवर माइनस 2l। एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ लिखना है। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई इट। सो वी गेट x is equal to minus 2l over minus 2l and x is equal to minus 2l minus 2m over minus 2l। minus 2l से कट होगा। that the solution set is x is equal to 1 and x is equal to l plus m over l। It's time to recapitulate our today's lesson. Today we learned about solving the quadratic equations by using quadratic formula. Firstly, arrange the given equations according to standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, and then by comparison with standard form of quadratic equation we find a, b and c and put all these values in quadratic formula. X is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a, where a is not equal to 0. After that simplify it. Now it's your assignment. Solve the following equation using a quadratic formula.
Thank you.